Good morning, dear students. Today we are going to see the numericals related to Born-Haber cycle. Now just go through this numerical. Calculate the lattice energy of NaCl crystal from the following data. Now what is the data given here? By using Born-Haber cycle, delta Hs of Na equal to 26 kilocalorie per gram. Then delta HD यानी कि heat of dissociation of Cl2 is equals to 54 kilocalorie per mole. Then ionization potential of Na is 117 kilocalorie per mole. Okay, again electron affinity for Cl equal to minus 84 kilocalorie per mole. Heat of formation of NaCl is minus 99 kilocalorie per mole. So all these values are given and we have to calculate what? Calculate the lattice energy, means we have to calculate U, that is lattice energy. Now Born-Haber cycle we have gone through. In that, which formulation we have used? So we will start with it. Okay. Now this is the numerical. Now from there, what is given there? Now given things. First thing, what is given here? From the following data by using Born-Haber cycle, delta Hs is equals to 26 kilocalorie per gram. Then delta Hd is also given. What it is? Delta Hd 54 kilocalorie per mole. Then ionization potential. Now always keep in mind, ionization potential and ionization energy, they both are same. So it is 117 kilocalorie per mole. Again, what is given there? Electron affinity, means Ea. Electron affinity is also given there. How much? Minus 84 kilocalorie per mole. Then heat of formation, that is delta Hf, is also given there. How much? Minus 99 kilocalorie per mole. Always keep in mind, whatever sign is given along with the numerical value, that you have to use it as it. Okay, you cannot put minus, ignoring minus and writing the number, that is wrong. Okay, always keep in mind, you have to write the number along with the sign. Now we know Born-Haber cycles formula. What is the formula? Delta Hf is equals to delta Hs, means heat of dissociation, plus half of delta Hd plus IE. IE means ionization energy or ionization potential, plus Ea plus U. Now here in this question we have to calculate lattice energy, means we have to calculate U. Okay. Now one by one we will use the values here. Delta Hf is given, how much? Minus 99 equal to delta Hs 26 plus half into delta Hd 54 plus IE 117, Ea minus 84. So put a bracket there and U is not there. Now फर्स्ट गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बोर्डमास रूल जो हम अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना. सो ऑल द सिंपल थिंग्स वी विल गो थ्रू एज इन मैथमेटिक्स वी डू. 26 प्लस 2 1 ज़ा 27, ये सॉल्व किया. फिर उसके बाद 117 प्लस इंटू माइनस माइनस 84 प्लस यू. अब ये जो यू है उसको एज सच रखो, इनका एडिशन ले लो और या तो इसको इधर शिफ्ट करो या तो u को इधर शिफ्ट करो. इफ़ यू शिफ्ट u here, what will happen?
u प्लस में है, उसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस यू, बाकी चीज़ें एज इट इज़। अब ये देखो -99 जो है वो इस साइड जाएगा, व्हेन इट गोज ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वल टू its sign will change. So when you solve it, you will get the answer. How much it is? The answer will be 185 kilocalorie per mole. But ये माइनस u की वैल्यू है, आपको u निकालना है, तो u will be, ये माइनस साइन शिफ्ट कर दो और मल्टीप्लाई बाय u on both side, that one and the same thing. So simply you will put the minus sign here and you will get the answer. Okay. I hope you have understood this numerical. Now we will go through the second numerical or second type of numerical. Now check it. See here, this is different type of reaction is given. यहाँ steps दिए हुए reaction के, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो डेल्टा एच तो दिया है, डेल्टा एच दिया है हर जगह डेल्टा एच है, लेकिन आपको ये पता करना है कि वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, लैटिस एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आई विल टेल यू। पहला रिएक्शन देखो, पहला है KS वाला, है ना, KS यानी कि पोटेशियम प्लस हाफ ऑफ आयोडीन इज इक्वल्स टू Ki. सो वी विल कंपेयर विद द बॉन्ड हाइबर साइकिल. ओके, यहाँ हम बॉन्ड हाइबर साइकिल से कंपेयर करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. ओके, यहाँ अगर आप देखो फर्स्ट वाला देखो, KS प्लस हाफ I2 इज इक्वल्स टू Ki, यानी पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है. यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू दी है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ हीट कौन सी है? तो यहाँ आप फर्स्ट रिएक्शन देखो, हाफ ऑफ Cl2 था फर्स्ट रिएक्शन में, है ना. सो दैट वन वी आर गोइंग टू यूज इट एंड ऑटोमेटिकली इट विल बिकम हीट ऑफ फॉर्मेशन. यानी कि ये हो गया डेल्टा एच इक्वल टू HF. ओके, सो ये आपको आइडेंटिफाई हो गया कि ये जो डेल्टा एच है वो क्या है, डेल्टा HF है. ओके, नाउ सेकेंड, यहाँ K जो है पोटेशियम वो आयनिक फॉर्म में है, यानी कि आपको आयनिक वाला देखना पड़ेगा, और ये जो I है वो निगेटिव फॉर्म में, मतलब ये वाला है ना, इससे कंपेयर करेंगे. तो यहाँ हमने क्या लिया, U लिया है, यानी कि ये हो गया लैटिस एनर्जी U. थर्ड है K गिव्स K इन द गैशियस फॉर्म. ये कहाँ आया है, सोडियम सॉलिड जब गैशियस फॉर्म में होता है तो उसमें कौन सी प्रोसेस लगती है, सब्लिमेशन. तो ये बन जाएगा डेल्टा HS, सब्लिमेशन वाला. फिर पोटेशियम गैस जब आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, तो डेल्टा H दिया है. इसको हम किस में डिफाइन करेंगे, IE में, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी. ओके, सिमिलरली जो आयोडीन है, I2 मॉलिक्यूल, उससे क्या मिला आपको, 2I मिल रहा है. ओके, इन द गैशियस फॉर्म आयोडीन के एटम मिल रहे हैं. तो एटम कब मिलेगा, सॉलिड से जब आप डिसोशिएट करोगे, यानी कि डेल्टा HD. आई होप यू अंडरस्टूड. जब आप ये डिफाइन कर लोगे तो आसानी से आप न्यूमेरिकल में पुट अप करके यू कैन फाइंड द वैल्यू. यहाँ देखो फॉर्मूला वही है, डेल्टा HF इज इक्वल्स टू डेल्टा HS प्लस हाफ HD प्लस IE प्लस EA प्लस U. ओके, फिर उनकी वैल्यू स्प्लिट अप की, हमने HF की वैल्यू डाल दी. यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि EA फाइंड करना है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली जगह छोड़ के बाकी सभी जगह आपको सब्सटीट्यूशन करनी है इन वैल्यूज़ की. जब आप कर लोगे, सिंपली आपको प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखना है. EA को वहीं के वहीं रखो और बाकी को इधर शिफ्ट कर दो, या EA को इधर कर दो तो वहाँ माइनस साइन आ जाएगी, और बाकी चीज़ें इधर शिफ्ट कर दो. ओके, एंड यू विल गेट द आंसर फॉर इट. इसी तरह से प्रीवियस वीडियो में इन द लास्ट लेक्चर आई गिवन द न्यूमेरिकल्स, सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको देखना है. सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इसमें. आई होप you have understood this. Thank you and have a nice day. If any doubts are there, just contact me. Thank you.